અભિનંદન કે આપે કાંતિભાઈ જેવા સરળ સીધા સાદા એવા એક લોક સેવકને અહીંયાથી ખૂબ જંગી બહુમતીથી જીતાડ્યા છે। આપને હૃદયથી ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। મને લાગે છે આ તાળીઓ ઓછી છે, પણ આવનારી ચૂંટણીઓ પછી આ તાળીઓમાં જબરજસ્ત વધારો થાય એવી આપ સૌને વિનંતી અને પ્રાર્થના કરું છું। અમે નાના હતા ત્યારથી જ્યારે માં અંબાજીના દર્શન કરવા આવીએ ત્યારે દાંતા થઈને જવાનું થાય એ પ્રસંગ બને, એટલે માતાજી પાસે જવાનો માર્ગ આપ સૌની વચ્ચેથી મળે છે અને માતાજીના આશીર્વાદ અમારું તમારું અને સમગ્ર ગુજરાતનું કલ્યાણ કરે એવી આ નવા વર્ષમાં આપ સૌને અભિનંદન સાથે સાલ મુબારક સાથે પ્રાર્થના કરું છું। આજનો આ પ્રસંગ ખાસ આદરણીય ગેહલોતજી અને આદરણીય રઘુ શર્માજી આવનારી ચૂંટણીની સાથે સાથે સમગ્ર પ્રજા, સમગ્ર જનતા જનાર્દન, આદિવાસી સમાજ અને સૌ સમાજ એના ઉત્થાન, એના કલ્યાણ, એના પરિવર્તન, એની પ્રગતિ અને એની સાથે સાથે એનું સ્વાભિમાન એને મજબૂત કરવાના ભાગ રૂપે આજે આપની વચ્ચે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છીએ। સાથે સાથે એ માહિતી આવતીકાલે ગુજરાતમાં 5 જગ્યાએથી પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રા શરૂ થવાની છે। દેશના જુદા જુદા વરિષ્ઠ આગેવાનો, ગુજરાતના વરિષ્ઠ આગેવાનો અને બધા સાથે મળી અને આ પરિવર્તન યાત્રા, જેમ આ દીપાવલીનું વર્ષ હમણાં ગયું, ગઈકાલે લાભ પાંચમ, કે અંધારું જાય, દુઃખ જાય, તકલીફ જાય, મુશ્કેલી જાય, એવી જ રીતે આ ભાજપના રાજમાં મોંઘવારી, ભ્રષ્ટાચાર, બેરોજગારી એને દૂર કરવા માટેનો જે નવો પ્રસંગ 2022ની ચૂંટણી ડિસેમ્બરમાં આવી છે, ત્યારે આપ સૌના જનતા જનાર્દનના આશીર્વાદ દ્વારા એ નવું વર્ષ ગુજરાતની પ્રજા માટે આપના આશીર્વાદથી એક કોંગ્રેસ દ્વારા નવી સરકાર આવે એ માટે આપના આશીર્વાદ માટે આપની વચ્ચે આવ્યા છે। આપ જાણો છો એમ કે એક બાજુ આપ ટીવી પર આપણા સૌના લાડીલા નેતા રાહુલજીને જોતા હશો કે ભારત જોડો આંદોલન સાથે કન્યાકુમારીથી શરૂ કરીને આજે તો 50 દિવસ થવા આવ્યા। બધા જે લોકો એમાં જોડાયા છે ત્યારે હજારોની સંખ્યામાં લોકો એમાં જોડાયા છે। ધૃણા, તિરસ્કાર, ઈર્ષા, વેર ઝેર છોડી અને સૌ એક થઈ અને ભારત જોડો એ યાત્રા રાહુલજીએ શરૂ કરી છે। અને આપણે ઇતિહાસને યાદ કરીએ તો જેમ મહાત્મા ગાંધીએ આ દેશમાં જ્યારે અંગ્રેજો જુલમ કરતા હતા, આ દેશને લૂંટી લેતા હતા, એને ગુલામ બનાવ્યો હતો અને એને સાવ પાયમાલ કરી અને ગરીબ અને દુખી કક્ષામાં રાખતા હતા, ત્યારે આ દેશના તમામ ધર્મ, જાતિ, ભાષા, પ્રાંત, ખૂણે ખૂણા, ગુજરાત, પશ્ચિમ બંગાળ, કન્યાકુમારી અને ત્યાંથી ઠેઠ એવા તમામ લોકોને જોડીને જ્યારે એક કર્યા ત્યારે આ દેશમાંથી અંગ્રેજોએ ભાગી જવું પડ્યું, એમણે નીકળી જવું પડ્યું। ત્યારે આ દેશમાંથી ગરીબી, દુઃખ, તકલીફ, ભ્રષ્ટાચાર, તિરસ્કાર, કોમવાદ આ બધાની સામે આ દેશના લોકોને ભારત જોડો દ્વારા રાહુલજી એક કરવા માટે એક બાજુ સરસ મજાનું ભારત જોડોની યાત્રા શરૂ કરી છે। અને એના ભાગ અને અંતર્ગત રૂપે જ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ચૂંટણીમાં કોઈ એક સત્તા લાવવા માટેની વાત નહીં, પણ એક પરિવર્તન। આપણે જોયું કે કોરોનામાં લાખો લોકોના મૃત્યુ થયા, મોંઘવારીએ માજા મૂકી, યુવાનો કામ કરતા હોય, મહેનત કરતા હોય, ભણ્યા હોય, પરીક્ષા આપતા હોય, નોકરી માટે ફાંફા મારતા હોય, મોંઘવારીએ એવી માજા મૂકી કે પેલા 400 રૂપિયાનો ગેસનો બાટલો 1000 રૂપિયા થઈ ગયો। માતાઓ બહેનોએ ભેગા કરેલા પૈસા પેલી નોટ બદલી કરીને, ચલણ બદલી કરીને
એ પૈસા ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર લઈ ગઈ, જીએસટી. પણ આ બધા જ દુઃખ તકલીફ અને એનું નિવારણ કરવું હોય તો એને માટે એકમાત્ર ઉપાય એ લોકશાહીમાં ચૂંટણીમાં આપણે આ સરકારને બદલવાનો, પરિવર્તન કરવાનો છે. સમગ્ર ગુજરાતમાં આજે અશોક ગેહલોતજીના નેતૃત્વમાં આજે દાંતાથી શરૂ કરીને દાંતા, ખેડબ્રહ્મા, ભિલોડા થઈને આજે આ કાર્યક્રમ પરિવર્તન સંકલ્પ યાત્રાની શરૂઆતના ભાગ થઈ રહ્યો છે. ત્યારે હું આપ સૌને પ્રાર્થના અને વિનંતી કરું છું કે કોંગ્રેસે નક્કર કાર્યક્રમ નક્કી કર્યો છે. 5મી સપ્ટેમ્બરે અમદાવાદમાં રિવરફ્રન્ટ પર રાહુલજીએ 8 અને 3, 11 મુદ્દાઓ, જે ગુજરાતની પ્રજાના કલ્યાણને સ્પર્શતા મુદ્દાઓ, જેમાં સમાજના તમામ વર્ગના લોકો આવી જાય, ગરીબ, મધ્યમ વર્ગ, નાના મોટા સૌ, અને એ પ્રશ્નોનું નિરાકરણ કરવા માટે કોંગ્રેસે જે નક્કર કાર્યક્રમ ઘડી કાઢ્યો છે. દ્વારકા ડિક્લેરેશન પછી, અને આ કોઈ સત્તા માટે નહીં પણ પ્રજાના કલ્યાણ માટેનો કાર્યક્રમ, એ કાર્યક્રમ લઈને તમારી વચ્ચે આવ્યા છીએ. ત્યારે બહુ લાંબી વાત નહીં કરતા, મને તો મોકો મળ્યો, કાંતિભાઈનો આભાર, ભરતસિંહજીનો આભાર, અહીંયા બેઠેલા મંચ પર સૌ આગેવાનોનો આભાર કે માં અંબાજીના દર્શન કરવા જતા પહેલા જેમ એમ કહેવાય કે ગુરુ ગોવિંદ દોનો ખડે કિસકો લાગુ પાય, તો દાંતાની પ્રજા દ્વારા માતાજીના દર્શનનો મોકો મળે. એટલે આપ સૌને મારા પ્રણામ કરી આપનો આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ પૂર્વ પ્રમુખ ભરતસિંહજી સોલંકી સાહેબે ખૂબ જ સુંદર અને સાત્વિક શબ્દોમાં આપણી વચ્ચે આવી અને વાત કરી, અને આપણા દાંતા તાલુકા ધારાસભ્ય ખરાડી સાહેબ વિશે પણ કીધું કે એકદમ સોફ્ટ નેચર. અને હું તો ઘણીવાર ખરાડી સાહેબ માટે એક જ શબ્દ વાપરું છું કે એમનું જીવન સિમ્પલ લિવિંગ એન્ડ હાઈ થિંકિંગ, સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચાર. બસ લોકો માટે કામ કરવું અને લોકોના વિચારોને સરકાર સુધી પહોંચાડવાનું કામ કરનાર એવા ખરાડી સાહેબને પણ ફરી એકવાર હું અભિવાદન આપું છું. અને આપણી વચ્ચે માનનીય આદરણીય એવા અશોક ગેહલોતજી સાહેબ, પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શ્રી રાજસ્થાન, એમનું સ્વાગત અમારા દાંતા તાલુકા અને અમીરગઢ તાલુકાના કોંગ્રેસ સમિતિના તમામ આગેવાનો શ્રીઓ ફુલહારથી સાહેબ શ્રીનું સ્વાગત કરશે. તો હું અહીંયા ક્રમશઃ નામ બોલું છું, એ મહાનુભાવો સ્ટેજ પર આવી જાય અને ગેહલોત સાહેબનું ફુલહારથી ભવ્ય સ્વાગત કરે. તો શ્રી રફીકભાઈ શેખ, રામસિંહ ડાભી, નરસાભાઈ મહારાજ, વિનોદભાઈ ચૌધરી, શામળભાઈ માળી, નાનજીભાઈ ત્રાંગી, કાંતિભાઈ માજીરાણા, તુલસીભાઈ જોશી, કાંતિભાઈ બુંબડિયા, રમણલાલ પ્રજાપતિ, હિંમતભાઈ દિયોલ, જીતેન્દ્રભાઈ ઠાકોર, રાયચંદભાઈ તરાલ, દલપતભાઈ પરમાર, ઈશ્વરભાઈ પરમાર, ઇબ્રાહીમભાઈ માકડોજીયા, બાબુભાઈ અંગારી, અશ્વિનભાઈ ચૌધરી, મેહુલદાન ગઢવી, ભવાનસિંહજી રાઠોડ, ઈશ્વરભાઈ ડામોર અને પીરાજી રબારી, તમામ મહાનુભાવો સ્ટેજ પર આવી અને આપણા સાહેબશ્રીનું ફૂલહારથી ભવ્ય સ્વાગત કરીએ. અને જ્યારે સ્વાગત થાય છે ત્યારે આપણે મંડપ નીચે બેઠેલા સૌ ભાઈ બહેનો આ સ્વાગતને અઢળક તાળીઓથી વધાવીએ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન સાહેબશ્રીઓને અને અમારા દાંતા તાલુકા અને અમીરગઢ તાલુકાના કોંગ્રેસ સમિતિના પદાધિકારીઓને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, આગેવાનો શ્રીઓને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, અને ગેહલોત સાહેબશ્રીએ પણ અમારો સ્વાગત સ્વીકાર્યું એ બદલ આપશ્રીનું પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હવે હું મંચ પર આમંત્રિત કરીશ માનનીય શ્રી ડોક્ટર રઘુ શર્મા શ્રી, પ્રભારી ગુજરાત પ્રદેશ.
श्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, प्रभारी गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, गुजरात प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री सम्मानीय भरत भाई सोलंकी जी, दाता के धारासभ्य सम्मानीय कांति भाई कराड़ी जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भरत भाई वाघेला जी, पालनपुर के धारासभ्य महेश पटेल जी, दियोदर के धारासभ्य शिवाभाई भूरिया जी, पूर्व विधायक पूर्व धारासभ्य गुआभाई रेबारी जी, जोईता भाई, पूर्व सांसद अलका बहन जी, रविराज गढ़वी जी, हमारे साथी राजस्थान से आए हुए धारासभ्य नगराज मीणा जी, रतन देवासी जी, नरेंद्र मेघवाल जी, ब्लॉक अध्यक्ष स्वरूपा जी, जाकिर भाई और यहां उपस्थित दांता विधानसभा क्षेत्र के सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज आपके बीच में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपको संबोधित करने आए हैं। आप सब जानते हैं, दिसंबर के अंदर गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। पिछले 27 साल से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं मंत्री था, चिकित्सा मंत्री गहलोत साहब की कैबिनेट में। पार्टी हाईकमांड ने 1 साल पहले मुझे कहा कि आप गुजरात में जाके काम करो पार्टी का। 1 साल से मैं यहां लगातार घूम रहा हूं। ये जो पिछले चुनाव में नारा था ना, विकास गांडो थयो छे, उसकी सच्चाई अगर देखनी है तो मैंने देखी है 1 साल के अंदर हालात। 27 साल जिस पार्टी को सरकार में रखा गुजरात की जनता ने, धोखे के अलावा, महंगाई के अलावा, बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं मिला गुजरात को। ये जो आदिवासी बेल्ट है, राजस्थान की लगती हुई सीमा है, आपकी रिश्तेदारी है पड़ोस में लोगों से, आप जाके देखो आदिवासी हमारे यहां भी रहते हैं, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, कैसे अस्पताल बने हैं वहां, कैसे अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुले हैं आदिवासी क्षेत्र में, सड़कें कैसी है, वो तो गुजरात का बॉर्डर क्रॉस करोगे आपको मालूम पड़ जाएगा कि गुजरात की सड़क और राजस्थान की सड़क में क्या फर्क है। ये समझते हैं कि हम काम करें या नहीं करें, गुजरात की जनता तो हमको वोट देगी। हम इनको धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, हम इनको जाति के नाम पे लड़ाएंगे, हम इनको भाषा के नाम पे लड़ाएंगे और चुनाव जीत के बदले में इनको धोखे के अलावा कुछ नहीं देंगे। ये थ्योरी, ये सिद्धांत बीजेपी को आज रास आ रहा है गुजरात में। और आप 27 साल में जब विकास नहीं हुआ, कल परसों दाहोद में थे, गहलोत साहब की भी मीटिंग थी, नवसारी में थे हम। आदिवासियों पे जुल्म ये कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं उन पे। अनंत पटेल कांग्रेस का धारासभ्य, उसने कहा कि आदिवासी का अधिकार है उसकी जल पे, उसकी जंगल पे, उसकी जमीन पे, और उसके बच्चों को पालने के लिए ये अधिकार कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने वन अधिकार अधिनियम और पैसा कानून लागू करके दिया है कि जो आदिवासी जहां रहता है उसका अधिकार है, उस जमीन पे, उसके पानी पे उसका अधिकार है, उस जंगल पे उसका अधिकार है। लेकिन यह अधिकार
राजस्थान में मिल रहा है, गुजरात में इनकी जमीनें छीनी जा रही है। अगर सड़क बनती है दिल्ली और बंबई के बीच में तो सड़क जबरन आदिवासी की जमीन लोगे, मुआवजा दोगे मुट्ठी भर। किसी अमीर की जमीन लोगे, उसको मुआवजा दोगे 10 गुना। ये अन्याय इस गुजरात की धरती पे हो रहा है। योजना बना दी वहां साउथ गुजरात में कि हम पार तापी लीवर लिंक प्रोजेक्ट लाएंगे। अरे भाई, जिसकी जमीन ले रहे हो, जिसका अधिकार छीन रहे हो, उससे पूछा आपने? बिना आदिवासी को पूछे हुए ऐसे ऐसे काम यहां हो रहे हैं। जब उन्होंने आंदोलन किया, पुलिस की लाठियां बरसाई, जेल के सीकचे में डाला और उससे भी काम नहीं चला। आंदोलन गांधीनगर तक पहुंचा। आदिवासियों के अधिकार की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी थी। उसके बाद बीजेपी के पदाधिकारी, उन्होंने निर्मम हत्या के इरादे से अनंत पटेल पे हमला किया। नवसारी के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ 8 तारीख को। आज 30 तारीख है। मुलजिम घूम रहे खुलेआम। उल्टा जिसने मुकदमा किया, जिस आदिवासी के बच्चे के ऊपर जो आज धारासभ्य है हमला हुआ, उसके खिलाफ 307 का केस इस सरकार ने दर्ज कर दिया। ये आदिवासी विरोधी मानसिकता इस सरकार की नहीं है तो क्या है? गहलोत साहब आज से 20 साल पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री थे। ये मानगढ़ धाम, जहां गुरु गोविंद के नेतृत्व में 1500 आदिवासियों ने अपना बलिदान कर दिया, उस जगह पे स्मारक बनाने की गुरु गोविंद के याद को ताजा करने के लिए आदिवासियों का बलिदान खाली नहीं जाए। इस देश के आजादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ इतिहास है। आपने स्मारक बनाया। पिछले 8 साल से, जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, बराबर चिट्ठियां लिख रहे हैं। राष्ट्रीय स्मारक मानगढ़ धाम को घोषित करे भारत सरकार, लेकिन मोदी जी ने 8 साल में नहीं किया। अब चुनाव आ रहे हैं। अभी फिर गहलोत साहब ने चिट्ठी लिखी है। अब चुनाव आ रहे हैं, आदिवासी का वोट लेना है। अब 1 तारीख को बड़े साहब मानगढ़ धाम आएंगे। उनको सद्बुद्धि दे भगवान कि ये जो हजारों लाखों आदिवासी 3 राज्यों के, राजस्थान के, गुजरात के, मध्य प्रदेश के, इनकी आस्था का केंद्र है। 1500 आदिवासियों ने शहादत दी है। ये राष्ट्रीय स्मारक घोषित करके जाए, ये कांग्रेस पार्टी की मांग है। आज कोरोना आया, सदी का भीषणतम महामारी। यहां गुजरात में लोगों ने ऑक्सीजन नहीं मिली, अस्पतालों में बेड नहीं मिला, जीवन रक्षक इंजेक्शन रेमडेसिविर नहीं मिला, वेंटिलेटर नहीं मिला। 3 लाख लोगों ने गुजरात में तड़फ तड़फ के दम तोड़ा है। और ये बगल में राजस्थान है। डूंगरपुर जाओ, बांसवाड़ा जाओ, उदयपुर जाओ, प्रतापगढ़ जाओ, सिरोही जाओ, हर जगह मेडिकल कॉलेज, 500 बेड का अस्पताल, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, अंग्रेजी मीडियम के स्कूल, सड़कें, पानी, बिजली। क्या कमी रखी है जहां कांग्रेस की सरकार है? और इधर आओ गुजरात की तरफ, यहां पे नजारा दे विकास। इसलिए आज मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि गुजरात में 27 साल हो गए, इस चुनाव में परिवर्तन आना चाहिए। अगर आदिवासी के जीवन में खुशियां लानी है, अगर गरीब के जीवन में खुशियां लानी है, अगर मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में खुशियां लानी है, एकमात्र विकल्प है हाथ का निशान और कांग्रेस पार्टी। मुझे उम्मीद है गुजरात की जनता समझदार जनता है, अब बीजेपी के झांसे में नहीं आएगी और कांग्रेस को अपना आशीर्वाद देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री डॉक्टर रघु शर्मा जी। और हम
मैं आमंत्रित करने जा रही हूं हम सबके माननीय आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी, मुख्यमंत्री राजस्थान, चीफ ऑब्जर्वर गुजरात साहेब श्री को हम निवेदन करते हैं कि मंच पर आइए और आपका अनुमोदन दीजिए। श्री गहलोत जी सर। हमारे प्रभारी गुजरात के एआईसीसी के डॉक्टर रघु शर्मा साहब, केंद्रीय मंत्री रहे हुए हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस के भरत भाई सोलंकी जी, कांति भाई कराड़ी जी एमएलए साहब, महेश पटेल जी एमएलए पालनपुर, शिवा भाई भूरिया जी एमएलए देवधर, भरत सिंह जी बाघेला जिला अध्यक्ष, बालकी बहन जिला पंचायत अध्यक्ष, ज्योता भाई पटेल पूर्व विधायक, गोवा भाई देसाई पूर्व विधायक और नगराजी मीना हमारे राजस्थान से आए यहाँ पर, दरियावत से विधायक, रतन देवासी जी हमारे पूर्व विधायक, जाकिर चौहान साहब, दिनेश गौड़ा जी, गढ़वी जी, अलका बहन जी क्षत्रिय पूर्व सांसद, स्वरूप जी रबारी, जाकिर जी अध्यक्ष, रवि राज जी गढ़वी, नरेंद्र मेघवाल और तमाम हमारे उपस्थित सम्मानित मंच, उपस्थित बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, बनासकांठा में और ये इस क्षेत्र में जो आप लोग सुबह सुबह इतनी बड़ी तादाद में आए हो, वहां तक देखिए आप लोग बैठे हुए हैं, पूरा टेंट भर गया है। ये इस बात का प्रतीक है कि आपका आशीर्वाद, आपका प्यार, आपका विश्वास पहले की तरह कांग्रेस के साथ है। 9 सीटों में से जिले की 7 सीटें जिताई आपने। मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करूं, धन्यवाद आपको दूं। आप धन्यवाद के पात्र हैं। 7 सीटें जिताई उस वक्त में। अगर आपकी तरह 4-5 जिले में और 7 सीटें जीत जाते तो सरकार बीजेपी की नहीं बनती, कांग्रेस की बनती। 10 सीटें कम रही थी उस वक्त में। खूब आप लोगों ने कोई कमी नहीं रखी थी उस वक्त में। पूरे प्रदेश के अंदर एक राहुल गांधी जी की यात्रा चलती रही। मैं प्रभारी था यहाँ पर आपका, आपके कार्यकर्ताओं ने, आपके नेताओं ने, आप सब ने उस वक्त जो हमें विश्वास दिया, प्यार दिया, मोहब्बत के साथ में आपने रिश्ता निभाया, उनको हम कभी भूल नहीं सकते। मैं तो आपके पड़ोसी राज्य का ही मुख्यमंत्री हूँ। आपके आशीर्वाद से मुझे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और मैं हमेशा आता रहता हूँ हर चुनाव के अंदर, कहीं कहीं जाते रहते हैं गुजरात के अंदर। गुजरात का राजस्थान का रिश्ता आपको मालूम है कि बहुत पुराना है। नर्मदा का पानी आपके यहाँ से आया थोड़ा बहुत सांचौर की तरफ। हमने वहां बूंद बूंद की खेती करके, जो गुजरात में उस ढंग से नहीं है, बहुत कम मात्रा में पानी मिला वहां पर हम लोगों को, तब भी हमने उसका पूरा सदुपयोग किया है। इस रूप में वहां के किसान बहुत खुश हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ दावे के साथ में, कांग्रेस पार्टी छत्तीसी कौम की पार्टी है, आपकी पार्टी है और 27 साल से सरकार नहीं है कांग्रेस की। आप 27 साल किसे कहते हैं? गुजरात मॉडल करते करते प्रधानमंत्री तो बन गए मोदी जी। तो आज आप बताइए क्या हालत है गुजरात की, कितनी भारी महंगाई है। राहुल गांधी की यात्रा में क्या मुद्दे हैं? वो देशव्यापी मुद्दे हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे बेरोजगारी का हो। एक जब राजस्थान में हम 3-3.5 लाख नौकरियां दे रहे हैं राजस्थान के अंदर, और यहां नौकरियों की हालत है। ऐसी दुर्गति मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं है जितनी यहाँ दुर्गति है। नौजवान को नौकरी मिल नहीं रही है। नौकरी मिलती तो अस्थायी मिलती है, 5 साल तक फिक्स पे मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट पे मिलती है। और अभी हमने 10 दिन पहले ही 1,10,000 जो कॉन्ट्रैक्ट में थे उन सबको हमने
नियमित करने का फैसला कर लिया। आपने देखा होगा अखबार के अंदर भी। इस प्रकार से हम युवाओं का ध्यान रख रहे हैं, हर वर्ग का ध्यान रखते हैं हम लोग वहां पे। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आपने देखा है किस प्रकार से पशुपालक है यहाँ पे, हम 5 रुपए प्रति लीटर का बोनस देते हैं दूध के लिए राजस्थान के अंदर। और हमने हम देखा होगा जो वचन कहे राहुल गांधी जी ने, उन वचन के आधार पर आने वाले वक्त के अंदर जो घोषणा करी है 500 रुपए मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा 500 रुपए में आपको। ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी घोषणा हुई है कांग्रेस की तरफ से। महंगा कर दिया इन लोगों ने खुद ने, 400 का था पहले, 1040 का कर दिया। 300 यूनिट फ्री मिलना बहुत बड़ी बात है। अभी मैंने 50 यूनिट फ्री की राजस्थान में, 42 लाख लोगों को बिल शून्य आने लगे, जीरो आने लग गया राजस्थान में। 300 यूनिट तो बहुत बड़ी बात होती है। मैंने वहां बीमा किया है, प्रीमियम सरकार भर रही है। 10 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है इलाज का। हमारे यहाँ पूरा इलाज फ्री है। आईपीडी ओपीडी जो भर्ती हो या देखा के जाओ, एमआरआई फ्री, सीटी स्कैन फ्री, किडनी ट्रांसप्लांट करनी हो, लीवर ट्रांसप्लांट करना हो, 10 लाख के अलावा खर्चा होगा, 10 लाख 15 लाख वो भी सरकार देगी। ऐसा हिंदुस्तान में सुना आपने? ऐसी योजना आज तक कभी नहीं है इतिहास के अंदर। आजादी के बाद में पूरा इलाज फ्री कर दिया राजस्थान के अंदर। सब अस्पतालों के दवाएं फ्री हो रही है, टेस्ट फ्री हो रहा है, इलाज फ्री हो रहा है। हमने मांग की है मोदी जी से भी, हमारी योजना को पूरे मुल्क में लागू करो। सोशल सिक्योरिटी जरूरी है, महंगाई का जमाना है और दवाइयों में, इलाज में बहुत खर्चा होता है। आप देखते हैं कई लोगों तो घर बिक जाते हैं, गहने बिक जाते हैं, उधार लेके लोग इलाज करवाते थे। राजस्थान में अब आप देखोगे तो आपको पाओगे कि ऐसा व्यवस्था कहीं पे हिंदुस्तान में नहीं है। हम चाहते वैसी व्यवस्था गुजरात में लागू हो, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। सरकार बनेगी कांग्रेस की तो मैं वचन दिया है कि यहाँ पे भी 10 लाख का बीमा लागू होगा, गुजरात के अंदर लागू होगा। मेन बात ये कहना चाहता हूं मैं आपको। आप सोच सकते हो कितने पूरे गुजरात वासियों का, कोई अमीर गरीब की बात नहीं, उसके अंदर बीपीएल की बात नहीं है। कोई परिवार हो, सब परिवारों के लिए खुले हैं दरवाजे। अब ज्यादा पैसा वाला है, जाना चाहे अहमदाबाद में, उसकी मर्जी है, पर सरकार की तरफ से पूरा इलाज फ्री होगा गुजरात वासियों का। इतना बड़ा मैं आश्वासन देना चाहता हूं आप लोगों को, ये कहना चाहता हूं आपको। 3 लाख रुपए तक कर्जा माफ की बात करी गई है। 3 लाख रुपए कर्जा माफ करने की हमने वादा किया आपसे, वो माफ होगा। राजस्थान के अंदर भी राहुल गांधी जी ने कहा था चुनाव जीतते ही 7 दिन में हम लोग वादा निभाएंगे, कर्जा माफ करेंगे। तो हमने 3 दिन में वादा कर दिया, पूरा कर दिया, निभा दिया, कर्जा माफ वापे कर दिया। खाली विपक्ष वाले फिर हमें हमारे खिलाफ बोलते रहते हैं। कोरोना के अंदर हमने वहां पर हर परिवार को 50,000 तक दिए हैं। उसके अलावा अगर बच्चे अनाथ है उनको 1 लाख रुपए तो एक मुश्त, 2,500 रुपए प्रति माह। 18 साल का होगा उसके लिए 5 लाख एफडीआर की आबादी अभी थी हम लोगों ने। 18 साल के बाद में 5 लाख ब्याज से मिलेगा तो वो अपना काम धंधा भी शुरू करने की सोच सकता है। विधवाओं के लिए यही किया हम लोगों ने, कोई कमी नहीं रखी। कोरोना में जो हमने व्यवस्था की थी इलाज की, फ्री इलाज की, उसको तो कल मुझे गुजरात में लोग मिले थे, वो कहता ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुई जो आपने करी थी। अहमदाबाद में कितने लोग मारे गए, कितने मर गए, कोई सोच नहीं सकता। एम्बुलेंस भी जिप चढ़ती गई, कोई व्यवस्था ही नहीं थी भर्ती करने की। यहाँ आप निश्चिंत रहें, प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ में पब्लिक सेक्टर में भी अच्छे अस्पताल बने, गांव-गांव में सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी बने, डॉक्टर वहां रहे। ये व्यवस्था करने का कर्तव्य कांग्रेस सरकार का होगा। नौकरी जो है, मैंने कहा 3.5 लाख नौकरियां किसे कहते हैं, इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा।
यहाँ भी सरकार जो सरकारी कर्मचारी की प्रॉब्लम्स है, नौकरियों की, नौजवानों की प्रॉब्लम्स है, नौकरी लगनी चाहिए, जो जो कमियां गुजरात में हैं उन तमाम कमियों को दूर करेंगे और राजस्थान में जो व्यवस्था है जिस प्रकार से वो व्यवस्था यहाँ लागू करवाएंगे जिससे कि लाखों लोगों को नौकरी मिल सके। नौजवानों को आज नौकरी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रकार से ओल्ड एज पेंशन लागू की हम लोगों ने कर्मचारियों के लिए भी, और भी कई फैसले किए जो आपको मैनिफेस्टो आएगा 2-4 दिन के अंदर। 8 तारीख को कांग्रेस मैनिफेस्टो घोषित कर रही है। 8 तारीख को लगभग तय है कि मैनिफेस्टो घोषित होगा। उसमें आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो पाएंगे किस प्रकार के वादे आपसे किए गए हैं। पिछली बार भी कोई कमी नहीं रखी आप लोगों ने। 7 सीटें जीतने कैसे कहते हैं। इस बार मुझे उम्मीद है कि आप नंबर 1 बन जाओगे पूरे गुजरात में। 9 की 9 सीटें जीत दोगे आप, ये मैं आपसे अपील करना चाहता हूं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, कोई कमी नहीं रखें। आदिवासियों के लिए मेरे पूर्व में भी बता रहे थे आपको, रघु शर्मा जी ने, भरत भाई ने, वनों के अधिकार के कानून की बातें बहुत सरकार ने करी, पर सोनिया गांधी जी ने और मनमोहन सिंह जी के वक्त में पक्की छाप लगी कानून बना करके। अब उसमें कमी रहती है, उसको दूर करते जाते राजस्थान में हम लोग। अभी 5000 पट्टे हमने दिए वापिस जांच करवा करके। मुझे पता नहीं यहाँ कितने पट्टे दिए जा रहे हैं, पर ये हम सुनिश्चित करेंगे कि आपके साथ में न्याय हो। और जो भी कर सकते हैं सरकार, हमने नरेगा में राजस्थान वो राज्य देश के अंदर जहां 100 दिन की बजाय 125 दिन का रोजगार हम देने लग गए राजस्थान के अंदर, नरेगा के अंदर। जो कस्बे, शहर, नगर पालिका हैं, वो हमने नई स्कीम लागू करी। नरेगा की तरह ही 100 दिन की गारंटी कर दी है। शहरों में गरीबों के लिए भी उनको रोजगार मिले, ये राजस्थान सरकार ने फैसला कर लिया है। ऐसे फैसले लागू यहाँ भी करवाएंगे, गुजरात के अंदर भी। जो जनजाति क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र राजस्थान के हैं, वो हम 200 दिनों का रोजगार देते हैं शहरी इलाकों के अंदर। तो कहने का मतलब ये है कि हमेशा से अभी गोविंद गुरु के नाम से हमने विश्वविद्यालय बनाया राजस्थान के अंदर, और मानगढ़ धाम पे प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे 1 तारीख को, हम भी जाएंगे वहां पर। हमने मांग करी है उनको, क्योंकि मैंने 22 साल पहले वहां गोविंद गुरु के नाम से 1500 आदिवासी मारे गए थे। आप कल्पना करो, उस जमाने के अंदर आदिवासियों की कितनी जागृति थी देश के प्रति। अपनी जान की बाजी लगा दी वहां। गोविंद छलनी हो गए और 10 साल की सजा हुई थी गोविंद गुरु को अंग्रेजों के राज के अंदर। वहां मैंने स्मारक बनाया था, फिर मूर्ति लगी है, और प्रधानमंत्री जी को हमने कहा कि राष्ट्रीय स्मारक घोषित करो। अब चुनाव का मौका है, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी भी अभी दबाव में हैं, और दबाव में उनको ये घोषित करना पड़ेगा राष्ट्रीय स्मारक, ये हमें पूरी उम्मीद है। नहीं करेंगे तो संघर्ष जारी रहेगा हमारा उनके साथ में, हम छोड़ने वाले नहीं प्रधानमंत्री जी को भी। इतना मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग एकजुट होकर के, आज आप पधारे हो, उससे मुझे यकीन हो गया है इस चुनाव में आप लोग 27 साल के कुशासन को अंत करेंगे। कांग्रेस को आप सरकार बनाने का मौका दीजिए। 27 साल पहले कैसा राज चलता था आपको मालूम है। आजादी के वक्त में सुई नहीं बनती थी देश के अंदर। आज क्या नहीं बनता देश में, कहां से काम चले गए हैं। पानी की स्कीमें, बिजली की स्कीमें, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में हम लोग पेंशन देते राजस्थान में। 1 करोड़ लोगों को पेंशन देते राजस्थान में, विधवाओं को, बुजुर्गों को, बूढ़े लोगों को, निःशक्तजनों को कोई कमी नहीं रखते हैं। हम चाहेंगे सोशल सिक्योरिटी की थीम पर आने वाली कांग्रेस सरकार चले। कोई गरीब आदमी भूखा नहीं सोए, जैसा हमने कोरोना में व्यवस्था करी थी राजस्थान में, वैसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। अभी हम वहां पर कोई भी व्यक्ति खाना खा सकता है जाके। इंदिरा गांधी के नाम से
रसोई चल रही वहां पर शहरों के अंदर 8 रुपए में खाना खा सकता है। एक थाली में 17 रुपए सरकार देती है वहां पर, प्रति थाली अनुदान सरकार दे रही 17 रुपए। 8 रुपए दो और खाना खा लो वहां पर। इतने लोग खुश है। मैं खुद इंदिरा रसोई में खाना खाने गया तो 2 बार। मुझे उनके साथ बैठ के इतना अच्छा लगा। मैंने उनको पूछा, तो इतने खुश थे लोग, कोई सोच नहीं सकता। ये महंगाई के दौर में कम से कम कुछ राहत तो मिले लोगों को, कोई तरीका निकाल करके। इसलिए स्कीमें जो लाए हैं, इसलिए लाए जिससे कि कोई तरीका निकले और गरीब के जेब में कोई बचत होगी तो वो अपने बच्चों के लिए, घर चलाने के लिए पैसा काम ले पाएगा और महंगाई की मार कम महसूस करेगा। ये सोच करके हम लोगों ने सब स्कीम बनाई है। मैं आपसे मालवी अपील करना चाहूंगा, कृपा करके इस बार आप 9 की 9 सीटें जिताएं और 9 जिताएंगे तो मुझे एक अवसर मिलेगा आपके यहाँ आगे बाबत धन्यवाद देने का। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। यही बात कहता हुआ मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा। भरत सोलंकी बैठे हुए हैं, रघु शर्मा जी है, सब हमारे नेता बैठे हैं और आपके लोकप्रिय एमएलए बैठे हुए हैं, कांति भाई, कई महेश भाई बैठे हैं, शिवा भाई बैठे हैं। तो जिला अध्यक्ष जी वाघेला साहब को मैं कहना चाहूंगा कि आपने मीटिंग बुलाई, हम सबको याद किया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आशा करता हूं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ करके जिला 9 की 9 सीटें जिताएगा। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गहलोत सर जी। आपने हमें आशीर्वचन दिए और उम्मीद भी जगाई कि अगले चुनाव में हमारी जीत होगी। एक बार फिर से तहे दिल से आपका आभार मानते हैं और अभिवादन करते हैं। હવે સ્વરૂપાજી રબારી પ્રમુખ શ્રી અમીરગઢ તાલુકા ને નિવેદન કરું કે પોતે આવીને કાર્યક્રમની આભાર વિધિ કરે। સ્વરૂપાજી રબારી। આજે નવા વર્ષના વિરમપુર ગામે આ અમીરગઢ અને દોતા બંને તાલુકાની સંયુક્ત મીટિંગ રાખેલ છે। એમાં આપણા પાડોશી રાજ્યના યશસ્વી મુખ્યમંત્રી જેવા જેની આપે આતુરતાથી વાત એવા માનનીય ગેહલોત સાહેબ, આપણા ગુજરાતના પ્રભારી ડોક્ટર રઘુ શર્મા સાહેબ, આપણા જ પૂર્વ પ્રમુખ અને કેન્દ્રીય મંત્રી અને ગુજરાતના પનોતા પુત્ર ભરતસિંહજી સોલંકી સાહેબ, આપણા सांसद अलकाबेन क्षत्रियजी, अपना पड़ोसी राज्यना पूर्व मंत्री रतनजी देवासी साहेब, अपना विस्तारना धारासभ्य लोकलाडीला हर हमेशा अपनी चिंता करनारा, नानू काम होय मोटू काम होय अर्धी राते अपनी वच्चे आवीने उभा रहता एवा लोकप्रिय धारासभ्य कांतिभाई खराड़ी साहेब, पालनपुरना एवा ज उत्साही धारासभ्य महेशभाई पटेल साहेब, अपना दियोदरना धारासभ्य शिवाभाई भुरिया साहेब, एवा ज अपना रबारी समाजना उत्तर गुजरातना हर हमेश मालधारीओनी चिंता करनारा एवा दिशाना पूर्व धारासभ्य गोवाभाई रबारी साहेब, धानेराना पूर्व धारासभ्य जोयताभाई पटेल साहेब, अपना प्रदेशना उपाध्यक्ष दिनेशभाई गढ़वी साहेब, अपना जिल्लाना प्रमुख वारकीबेन मंच पर अपना जे अमस उत्साही है जेनी प्रेरणा नीचे अमे आ काम चलाइले एवा अपना जिल्लाना प्रमुख भरतसिंहजी वाघेला साहेब, मंच पर बिराजेला तमामे तमाम महानुभावो, आजूबाजूथी आवेला कांग्रेसना पदाधिकारीओ, अमीरगढ़ तालुकाना जिल्लाना डेलिगेट, तालुकाना डेलिगेट, सरपंच सरजो, भाईओ बहनों, युवान दोस्तों अने वाला बाळको, आजे सौ पहला तो आप सौने
દિવાળીના રોમ રોમ, નવા વર્ષ ખૂબ સુખદાયી ફળદાયી નીવડે એ આપ સૌને અમીરગઢ કોંગ્રેસ સમિતિ વતી અને કોંગ્રેસ વતી આપને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છા પાઠવું છું. આપનો કિંમતી સમય ફાળવી અમારા આમંત્રણને માન આપી આપ સૌ જંગી મેદાની મેં સોયડો તડકો જોયા વગર આપ સૌ પધાર્યા એ બદલ હું મારા હૃદયથી અને કોંગ્રેસ સમિતિ વતી આપનો મારા દિલથી ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. અને હર હંમેશ આપ કોંગ્રેસની સાથે રહ્યા છો ને એવા રહેજો. અને આપણો કોંગ્રેસનો ગઢ હર હંમેશ સાહેબને એવી ખાતરી આપીએ છીએ કે ગુજરાતનું જ્યારે વોટ ગણતરી થાય એમાં દોતાની સીટ આપને ખોળે પહેલી મેલીએ એવી આપણે ખાતરી આપીએ છીએ. આપ સૌ ખૂબ ખૂબ આપનો ફરીથી મેં આભાર માની આપણા મહાનુભાવો આપણા મહેમાનો પણ એમનો કિંમતી સમય ઢાળી આ એક નાનકડા ગામમાં હાજરી આપી એ બદલ એમનો પણ હું મારા હૃદયથી ખૂબ ખૂબ આભાર માની મારી વાત પૂરી કરું. જય હિન્દ, જય ભારત. આવતીકાલે કાણોદર મુકામે જાહેર સભા રાખેલી છે તો પત્રકાર મિત્રોને જાહેર આમંત્રણ આપું છું કે બધા પત્રકાર મિત્રો હાજર રહે અને આ